Hello, Suhas sir. Can you hear me? Yes, ma'am, you are audible. तुम्हाला येत नाही ना? Hello, Jyoti ma'am. Am I audible? आवाज येतो? Yes, yes, yes. येतोय आवाज. Hello, sir. Can you hear me? Yes, ma'am. You are audible. Hello. Hello. Suhas sir. Yes, ma'am. You are audible. You can start. Okay. Ma'am, just start the recording. Hello, Audio Shailendra recording. sir. Start the recording. Sir, recording started. Yes, yes. Start it. Good morning. Good afternoon, all of you. Can you hear me? Hello. Yes, ma'am. Okay. Now, Shailendra Vidkar sir, he is a software engineer. He will deliver a Python programming on file handling. Lecture will deliver. Okay, sir. Yeah. Yes. Do I am audible to everyone? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Good. Uh, First of all, I will introduce myself. Uh, my name is Srishal Vidkar, and I am working as a software engineer from last 5 years in cyber software. Alongside, right now I'm working with AWS and uh, AWS and Python technology, which are currently in trending. In AWS specifically, I'm working on AWS Glue, which is in data engineering. So I'm not a full stack engineer, but I'm a data engineer which manipulates the data behind the scenes for each and every application, like whatever your required application. So, ma'am, everyone is in from first year or Yes, senior yes, sir. students? From your first year. Yeah, that will be a better. Yeah. So let's started with the Python programming and how we use it into the our whole ecosystem of IT infrastructure, and how we can utilize your skills into the IT sector using Python or any programming language. We will start with just overview of IT sector and what we did in IT sector as a programming language, and you will get an idea where to build your career in whole sector. So we will start from there, then we will go to the basic Python concept, and then we will go to the file handling and little bit hard concept, that is file handling and all those stuff. So yeah, let's get started. I will just turn on my camera just to utilize in bandwidth and share my screen. Screen is visible to everyone. Yes, sir. Yeah. Yes. Yeah, that's good.
So, Python programming language. Python, uh, why you people want to learn Python programming language? So, ये बेसिकली क्या होता है, अभी बूम चल रहा है सभी जगह पे एआई का, ये सब चीजों का, तो पाइथन 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 बूम पे. बट first question is that why you are in Python or why I am in Python itself. तो Python के बहुत सारे ऐसे फीचर्स है, that's why everyone is talking about Python. ठीक है? So we will see what features are those and how we approach in our company as a Python programming language. We don't use only Python programming language. We use lot of tools. We use AWS, we use Azure, we use Workato ETL tools. But on top of that, or in somewhere in those particular tools, we use Python. So first of all, Python is very easy and easy to learn as well. That's why Python is booming right now in this AI generation. So Python was founded by Guido Rossum in 1989 in National Research Institute, Netherlands. It was founded in 1989 and it's released to public in 1921. Okay, so Python basically is in high level programming language. Now see, high level programming language, what does it means exactly? High level programming language means the code you write into the any code editor or anywhere which has less number of lines, that means their functionality is hidden somewhere. That's why we called it high level programming language. Don't worry, if you don't understand this point now, then leave it. इसका कुछ मतलब हम देख लेंगे practically how it is a high level programming language. Just keep this word high level programming language. And other languages which are the low level language, which is in C. C is in low level language. तो पाइथन क्या है, पाइथन है ना एक्चुअली सी के बेस पे ही पाइथन बनाई गई लैंग्वेज. मतलब सी के बैकग्राउंड में जब भी कभी सी पाइथन का कोड रन होता है तो उसके बैकग्राउंड में सी का कोड रन होता है. स्पेसिफिकली सी पाइथन करके एक सी की लाइब्रेरी है जो कि बैकएंड को पूरा का पूरा रन करती है पाइथन को. Just keep all those words in your mind. I will explain each and everything in details. Okay. So Python is built on top of C language. It's a dynamically typed language. ये dynamically typed language क्या है ये भी हम देखेंगे. The type variable is to determine runtime, not during the compile time. This will I will show you how it will work. Dynamically typed language and general purpose high level programming language. Okay. Then the name Pythons come from the TV show called Monty Python Flying Circus. तो ये BBC चैनल पे एक शो आता था. इट्स एन डेली सोप काइंड ऑफ शो. उससे इंस्पायर्ड होके इस पर्टिकुलर बंदे ने उसका नाम पाइथन रख दिया. ठीक है. देयर आर हेलो एनीवन. Yeah, I think no one is speaking. Yeah. So उससे इंस्पायर्ड होके इस बंदे ने पाइथन बनाया. Now two different story of two different versions. This is the important point. Why Python is right now booming and why we are here in this particular workshop or guest lecture, whatever you see. Now my screen is visible to you, everyone? Yes, sir. Yeah. Okay. No issue. So Python version 2 and Python version 3, both versions have different stories. So Python version 2 is very easy and this particular version started used by the data scientists. Then data scientists come with the new ideas and improvement into Python version 2. So they develop Python version 3. Only because of data scientists and the flow in the data from last 5 to 10 years after the invention of internet is increased and data is a new fuel for the IT industry. That's why data scientists are scientists, they are not programmers. That's why they invented Python 3. And after inventing of Python version 3, each and every sector
each and every sector in IT industries is dominating by this particular language, which is in Python. Understood everyone why we are here to learn Python? Hello? Yes. Yeah, I think I'm audible to everyone. Yes, you are audible. Yes, sir, you are audible, sir. Yeah, okay, okay. बट आपको ये समझ में तो आया ना कि एग्जैक्टली हम क्यों पाइथन सीख रहे हैं एंड रीजन फॉर द पाइथन, बिकॉज इट्स प्रीडोमिनेंट थिंग इन द मार्केट और ये इजी टू यूज है. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है कि जिसमें सिंटैक्स बहुत कम होते हैं, ठीक है, जिसमें सिंटैक्स आपके बहुत कम होते हैं. और डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज का हम एक एग्जांपल देख लेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, ठीक है. उसके बाद देखेंगे फीचर्स ऑफ पाइथन. इजी टू कोड, ओपन सोर्स, फ्री फॉर एवरीवन, सपोर्ट फॉर GUI which is in graphical user interface, object oriented approach, high level. These are the features. So पाइथन का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पाइथन के बारे में कि पाइथन has a huge package distribution और package libraries they have content. So आप जो कुछ भी सर्च करना चाहोगे पाइथन में, if you want to develop anything, there is something present about that in Python. देखेंगे हम पैकेज क्या है, सेट ऑफ लाइब्रेरीज क्या है. तो पैकेज का मतलब सेट ऑफ लाइब्रेरीज ऑफ पाइथन इज वेरी ह्यूज दैट यू कैन सर्च. एक मीम आपका साल पहले, इट्स अ विनोद मीम, उसका भी हमें पैकेज मिल जाएगा पाइथन repository में. So Python has huge support. What is repository? What is package? Take a simple example. I will start from here as well. Take a simple example. What is package and what is library? Now you have an Android phone. You have Android phone. Android phone contain only apps which are useful. मतलब आपके एंड्रॉइड फोन में जब आप नया फोन लेते हो उसके अंदर जो एप्स रहते हैं वो एप्स जो यूजफुल है वही रहते हैं. दैट मीन्स फोन रहता है उसमें, सेटिंग्स रहती है उसमें, गैलरी रहती है उसमें. बट व्हाट यू कैन इंस्टॉल इन प्ले स्टोर और प्ले स्टोर से आप व्हाट्सएप भी इंस्टॉल करते हो. Exactly like same. Python is only programming language, and to extend that particular programming language, they have created libraries, which is called packages as well. So what is libraries and packages? Packages are the extension of particular Python programming language. Take an example. I have a Python programming language and I want to interact with AI using this particular Python language. So they introduce a library which is called scikit-learn, which interact with AI. This is the whole purpose of package. So Python programming language, it's your Android phone, which comes with some features like calling someone, receiving call from someone, and packages are like your Play Store. You can extend your existing limitations of your Android phone. This is called the packages, and we have huge support of packages in this particular Python programming language. आप Python programming language के साथ आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, आप फ्रंट एंड लिख सकते हो, आप वेब एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हो, आप इसमें AI ट्रेनिंग एंड मॉडलिंग कर सकते हो, आप इसमें सब कुछ कर सकते हो. यू कैन नेम इट एंड यू कैन डू इट इनटू द particular Python programming language. So this is overall thing about Python programming language. Python programming famous क्यों है अभी भी? क्योंकि it's taken feature from each and every famous programming languages. First, it's taken function programming from C. It takes OOPS concept from C++, scripting from shell script, and most syntax borrowed from C and ABC language. C and ABC language are used back in 90s. So before starting Python, it's just an introduction why we are just learning the Python. Before starting the Python, I will show you how this particular IT industry works and where Python is utilizes in this whole infrastructure. Okay.
तो बेसिकली कोई भी डेवलपर अगर कोई भी कंपनी में हायर होता है ना, तो उसके टाइप रहते हैं, उसका टेक स्टैक अलग अलग रहता है। फिलहाल मार्केट में अभी चल रहा है पाइथन full stack engineer. Suppose take it in full stack engineer only, okay? Full stack engineer. अभी full stack के अंदर combinedly 3 कैटेगरीज आती है, मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज। एक तो है हमारा पाइथन फुल स्टैक, दूसरा है जावा फुल स्टैक, और तीसरा है आपका मॉन फुल स्टैक। ठीक है, पाइथन में अभी फुल स्टैक में क्या रहता है, फुल स्टैक मींस आपके इसमें 3 ब्रांचेस आते हैं फुल स्टैक के अंदर, विच इज फ्रंट एंड, बैक एंड एंड database technologies. This is called the person who knows about front end, back end and database, which is called a full stack engineer. अभी पाइथन फुल स्टैक में क्या नॉलेज सेट रहेगा आपका, पाइथन फुल स्टैक में रहेगा यू शुड नो पाइथन along with Django, एंड इसमें आएगा आपका रिएक्ट और नोड। जावा में आपका सेम रहेगा, जावा में आपको जावा, स्प्रिंग बूट और आपका रिएक्ट और नोड। मर्ज स्टैक में ओनली जावास्क्रिप्ट इज रिक्वायर्ड एंड देयर जावास्क्रिप्ट एंड देयर लाइब्रेरीज is required, and this is nothing else is required in merge stack. Only if you know JavaScript you will good with merge stack, but इसका डिमांड बहुत कम है। Now see, any application development में ये 3 चीजें तो इंपॉर्टेंट हो गई आपकी, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग यूज करते हैं पाइथन। सपोज टेक एन एग्जांपल, अभी पाइथन का रोल क्या आता है, कोई भी एप्लीकेशन जब आपका होस्ट होता है, अभी मेरे आप स्क्रीन देख रहे हो पूरा का पूरा, ये भी एक एप्लीकेशन है, बैकएंड पे यहाँ पे गिटहब रन हो रहा है, ये भी एक एप्लीकेशन है। कोई भी एप्लीकेशन जब रन होता है ना, तो उसके अंदर है ना ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। अभी इसमें इस पर्टिकुलर थिंग में बैकएंड रहेगा हमारा, बैकएंड रहेगा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना ये सब चीजें, वो रहेगा फ्रंट एंड। ये किसमें लिखा रहेगा, रिएक्ट, और ये लिखा रहेगा जावास्क्रिप्ट में, एनी लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट। और डेटाबेस टेक्नोलॉजी में यहाँ पे आते हैं पोस्टग्रेस टेक्नोलॉजी, आपका सिक्वल, नो सिक्वल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सब चीजें। दिस इज एन ओवरव्यू वेयर वी पाइथन यूज। तो बैकएंड में क्या करते हैं हम लोग, फ्रंट एंड में जो कुछ भी लिखा है ना, जब यहाँ पे फॉर्म लिखा है, फॉर्म जब मैं सबमिट करता हूँ ना, तो ये बैकएंड पे कनेक्ट हो जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ने ये फॉर्म्स ट्रिगर किया पाइथन पे, पाइथन में ये सेव कर दिया डेटाबेस में। And like this is the core framework of Python programming language or any language you take in this particular industry. ठीक है, यहाँ पे ये हुआ पूरा ओवरव्यू ऑफ पाइथन। इसमें कंपैरिजन, कंपनीज यूजिंग पाइथन, Reddit using Python, Google, I say each and every company is using Python because it's a huge support of automation. सबसे important Python का यूज वही है, automation के लिए you can use it very easily and very quickly. I will show you the demo of few project at the last of particular session. But yeah, Python is useful in each and every industry and each and everywhere. So let's get started with Python and how it works exactly. So पहले थोड़ा बेसिक लेते हैं, पूरा बेसिक नहीं लूंगा मैं because we have a time limit and time restrictions. So पहले बेसिक लेता हूँ, कीवर्ड्स क्या है पाइथन में। अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है मतलब कीवर्ड्स भी आते हैं उसमें। अभी कीवर्ड्स का मीनिंग क्या रहता है, देखो, कीवर्ड्स आर द स्पेशली रिजर्व्ड वर्ड्स विच इज यूज्ड इन पाइथन। अगर सपोज मुझे पाइथन का एक प्रोग्राम लिखना है, तो मैं ये पर्टिकुलर जो कीवर्ड्स है ना, ये कीवर्ड्स कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, और इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है टू यूज दिस पर्टिकुलर कीवर्ड। सपोज मैंने एंड यूज किया, तो एंड का मीनिंग क्या होगा, इट्स एन लॉजिकल ऑपरेटर। दीज आर द ऑपरेटर्स, you will get an information about it on internet or any AI, you will tell you what these are logical operators and keywords, but this is an overview.
एट द एंड आपको यही समझना है कि some keywords are reserved by that particular programming language to use them. So where we use, why we use, how we use, that we will see. ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल काम करते हैं हम लोग, एक सिंपल फाइल बनाते हैं main.py। आप लोगों के पास लैपटॉप है क्या? अभी आप लोग सब मतलब लाइव सेशन कर रहे हो या सिर्फ एज एन लेक्चर अटेंड कर रहे हो ये सब चीजें? हेलो, हाँ यश, यश बोलो यश। हाँ हेलो, hello, do I am audible? Anyone? No one is responding. I think I'm just going on and going on. No, you are audible. Yeah, so आप लोग कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हो या ऐसे ही लेक्चर अटेंड कर रहे हो ऑन मोबाइल फोन डिवाइसेस? Anyone can tell me, just unmute yourself and tell me कि हाँ प्रैक्टिकल चल रहा है, नहीं तो we can continue with theoretical. लैपटॉप यूज करना है क्या सर? अगर आपके पास है लैपटॉप अच्छी बात है, मेरे साथ करो चीजें, अगर नहीं है तो डोंट वरी, we will continue with theoretical and with you can grasp the concept as well, so don't worry. तो simple thing है, I will continue myself. Okay, तो simple thing है यहाँ पे कि main.py फाइल एक मैंने सिंपल पाइथन फाइल बनाया है and I'm not doing anything here. ये जो है ये कोड एडिटर है which is in VS Code, but ठीक है, पाइथन का फाइल रन कैसे करते हैं हम लोग? पाइथन लिखते हैं इन टर्मिनल वगैरह क्या होता है, अगर आप VS Code डाउनलोड करते हो ना, कभी भी कोई भी VS Code एप्लीकेशन है, जस्ट गो टू द इंटरनेट, डाउनलोड VS Code आप डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे टर्मिनल पे आ जाओगे तो टर्मिनल ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, यहाँ पे आप एक फाइल बना सकते हो मेन, जैसे कि मैंने यहाँ पे main.py फाइल बनाया। .py क्या है? पाइथन फाइल। जब भी कोई भी पाइथन में प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेगा तो ये पर्टिकुलर एक्सटेंशन यू हैव टू यूज, .py फाइल, main.py करके, py इन दिस इज पाइथन, और ये मेन उसका फाइल नेम है। तो सिंपल चीज है, अगर यहाँ पे मैं कोई भी कोड लिखता हूँ तो ये रन हो जाएगा। रन करने का भी तरीका है। क्या तरीका है रन करने का? आई हैव टू गिव पाइथन, ये कमांड है, that means I am telling to the system that I am using Python, and with the help of Python execute this particular file. Which file? main.py file. ये क्या करेगा? ये main.py फाइल एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट देगा। अभी कुछ नहीं है, that's why यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। So first start करते हैं how we use Python, how internally Python manages the memory। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे मैंने ए लिखा सिर्फ। अभी दो टाइप है यहाँ पे, एक रहता है वेरिएबल्स रहते हैं, एक रहते हैं कांस्टेंट। अभी आप मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा, जब हम वहां पे मैथमेटिक्स में भी a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू d, ऐसा कोई तो फॉर्मूला रहता है। दैट मीन्स a में कुछ तो वैल्यू कंटेन है, b में कुछ तो वैल्यू कंटेन है, C में कुछ तो वैल्यू कंटेन है, और उसका आंसर D आता है। That's why we called it an variable. So defining the variable. Variables means क्या? It's an representation of something which is present in memory. Suppose take an example. If I take A is equals to 1. What it is? A की वैल्यू 1 है। अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू मुझे पहचाननी है ओके, तो मुझे अगर समझना है a इज इक्वल्स टू 1, इफ आई टेक एन प्रिंट, व्हाट इज प्रिंट? अभी आते हैं हम इसके अंदर, कीवर्ड्स के अंदर। तो a इज इक्वल्स टू 1, अगर मुझे पहचानना है a के अंदर कौन सी वैल्यू है, तो आई विल प्रिंट दैट पर्टिकुलर वैल्यू इनटू द कंसोल, दैट इज 1। मैंने अगर ये प्रिंट स्टेटमेंट निकाला और सिर्फ ये प्रोग्राम रन किया पाइथन main.py और a को
1 की वैल्यू असाइन कर दी और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। क्योंकि कुछ प्रिंट क्यों नहीं करेगा, इसको मैंने बताया ही नहीं कि मुझे कुछ तो प्रिंट करना है। तो जो कुछ भी पाइथन प्रोग्राम में होता है वो प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक प्रिंट स्टेटमेंट है, विच इज इन प्रिंट पैरेंथेसिस, फिर उसको हम लेंगे ए वाला। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे और रन करेंगे तो ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट करेगा विच इज ए की वैल्यू है। ठीक है, इस प्रिंट स्टेटमेंट के हम अंदर हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर मुझे वेरिएबल मतलब जो मैंने डिक्लेयर किया है वो प्रिंट नहीं करना, सिर्फ मेरा नाम प्रिंट करना है, हाय इट्स श्री, तो ये भी ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इट्स एन सिंपल थिंग कि तुम लोग कुछ भी प्रिंट कर सकते हो विद द यूजिंग ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। अभी ये क्या है, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है, वी डिक्लेयर a as an variable, then we declare another variable b is equals to 2। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे कि रिजर्व कीवर्ड्स के अंदर, अगर आप यहाँ पे देखोगे कीवर्ड्स के अंदर, तो इसमें सारे के सारे कीवर्ड्स रहेंगे विच वी हैव यूज्ड। अभी प्रिंट का मीनिंग तो हमें पता नहीं था, प्रिंट क्या है, रिटर्न क्या है, ये सब चीजें, दीज आर द वेरिएबल्स व्हिच वी कैन नॉट यूज एज एन वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम आपका कभी भी ऐड नहीं होगा। वेरिएबल मींस ये जो मैंने असाइन किया ना ए इज कॉल्ड एन वेरिएबल, और उसको जो लिखा है ना 1 व्हिच इज एन वेरिएबल वैल्यू, तो ये पर्टिकुलर थिंग वेरिएबल है, और ये वेरिएबल नेम कभी भी इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स में नहीं रहेगा। दैट्स अ सिंपल थिंग। तो अभी तक हम यही है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इट्स एन मैथमेटिकल डैशबोर्ड वेयर वी डिफाइन समथिंग एंड वैल्यू फॉर समथिंग। तो यहाँ पे मैंने ए डिफाइन किया, ए का वैल्यू 1 डिफाइन किया, बी डिफाइन किया, बी का वैल्यू 1 किया, और उसको यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, प्रिंट किया। यहाँ पे ए प्रिंट किया, यहाँ पे बी प्रिंट किया, दोनों चीजें प्रिंट की। अगर मैं ये रन कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, 1 और 2 ऐसा प्रिंट करेगा। ठीक है, अभी देखते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में कैसे इसका ऑपरेशंस होता है। सपोज आई टेक यही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैं करता हूँ 1 + 2, ठीक है, और ये रन कर देता हूँ 1 + 2 पाइथन इज इक्वल्स टू 3। अभी इसने क्या किया, 1 एडेड विथ 2 3 कर दिया। सिंपल ऑपरेशन, हमने ये ए बी कुछ नहीं यूज किया, ये छोड़ दो, चलो ठीक है। इसने क्या किया, सिंपल इसने 1 + 2 कर दिया। प्रिंट के अंदर मैंने लिखा 1 और 2 मिक्स करके मेरे को दिखा दे भाई कि क्या है। तो इसमें हम लोग विद यूजिंग वेरिएबल ये कैसे कर सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 1 एंड इफ b इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे मैं प्रिंट में लिख देता हूँ a + b। तो ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा a + b प्रिंट करेगा विच इज सेम आंसर विच इज 3। ये पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट है पाइथन का, कि हम लोग जैसे मैथ्स में हम 11th 12th में लिखते हैं कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, LHS इज इक्वल टू RHS, ये सब चीजें जैसी रहती ना, वही एक आपको एक प्लेन शीट मिल रहा है, वहां पे आप डिफाइन कर रहे हो कि a + b क्या है, a - b क्या है, ये सब चीजें। एवरीवन इज क्लियर, आई थिंक सो। इतना कुछ हार्ड नहीं बता रहा हूँ मैं। हेलो, सिर्फ एक कोई भी माइक ओपन करके बोल देगा ना कि हाँ वी आर क्लियर और वी आर गेटिंग समथिंग 10% आउट ऑफ इट, देन आई एम हैप्पी। एनीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That's it, that's it. Any questions? आपको अगर कोई क्वेश्चन भी होगा ना, डायरेक्टली Yes, माइक sir. अनम्यूट।
सर कळना झाले हो, नीट शिकवा. Sir, your mic is off, Muted. sir. You're not audible, sir. ओ मी म्यूटवर होतो का? ठीक आहे. हा हा हा. ओके, मग कुठपर्यंत म्यूटवर होतो मी? कंटिन्यू म्यूटवर होतो आतापर्यंत? नाही ना? कंटिन्यू म्यूट आहे सर आपण. किती? हॅलो Hello. हा, ओके, आवाज येतोय माझा? ओके ठीक है, मैं सांगतो पहिल्यापासून. ओके ठीक है, चलो अभी यहाँ से शुरू करते हैं कि यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है ना? a इज इक्वल टू 1 किया था, b इज इक्वल टू 2 किया था, प्रिंट b किया था. यहाँ तक सब लोग क्लियर है क्या? क्या ये भी समझ में नहीं आया यहाँ तक? नहीं सर. यहाँ तक नहीं समझ में आया? सिंपल है, देखो ठीक है. अभी यहाँ से देखो, सिंपल, जब हम कोई भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका एक एक्सटेंशन रहता है. ठीक है, अभी पाइथन पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सटेंशन का है .py. ठीक है, कोई भी फाइल हम बनाते हैं, आप लोग टेक्स्ट फाइल बनाते हैं तो क्या करते हैं आप लोग टेक्स्ट फाइल बनाए तो फाइल नेम .txt लिखते हैं, करेक्ट. फिर आप लोग बनाते हैं आपका एपीके फाइल, आपका एप्लीकेशन नेम रहता है .apk रहता है. ये क्या रहता है? इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन रहता है. पाइथन फाइल एग्जीक्यूट करने के लिए एक्सटेंशन रहेगा .py. ठीक है, तो आप कभी भी पाइथन कोड लिखोगे तो .py फाइल ही एग्जीक्यूट होगा. हाँ, Sir, someone is sharing. someone? सर कोई तो स्क्रीन शेयर कर रहा है. I think the respective teachers should take on responsibility of this, that someone is sharing the screen. Okay? तो इसका पर्टिकुलर एक्सटेंशन क्या रहेगा? .py रहेगा. एंड मैंने एक फाइल बनाया main.py करके, एंड विच कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एनी कोड, काइंड ऑफ कोड. ठीक है, सिंपल है. मैंने यहाँ पे a डिक्लेयर किया, a इज इक्वल्स टू 1. अभी इसका मीनिंग क्या है? मैंने a को वैल्यू असाइन किया 10 का. ठीक है, a इज इक्वल्स टू 10, a को वैल्यू असाइन किया 10 का. तो मैं ये 10 का वैल्यू असाइन करने के बाद अगर ये मैं पर्टिकुलर फाइल रन कर देता हूँ पाइथन main.py, मुझे कुछ आउटपुट नहीं आया. आउटपुट क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने बताया नहीं उसको कि मुझे क्या चाहिए. ठीक है, तो इसको मेरे को बताना है कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए रिटर्न में. तो मैं कैसे बताऊंगा इसको? मैं इसको बताऊंगा प्रिंट a. दैट मीन्स कि ये जो मैंने डिफाइन किया है ना, वो मुझे प्रिंट कर दो स्क्रीन पे. ये मैंने क्या किया? पाइथन फाइल रन किया और ये प्रिंट हो गया स्क्रीन पे एज इट इज.
मैं बोलना ये चाह रहा था कि ये इंटरनली वर्क कैसे होता है ये समझ लो. एज एन being engineer you should know that ki exactly how programming language is interacting with your processor, with your system. That's the most important thing that you should learn as an each and every programmer. अभी इसके बाद की सब चीजें आपको स्क्रीन दिख रही है प्रॉपरली? आई थिंक सो. आपको मेरा आवाज भी ठीक से आ रहा है? यस और नो? यस सर. ओके. Yes, sir. ये समझ लो कि मैंने a इज इक्वल टू 10 डिफाइन किया और इसको प्रिंट ए किया, तो इंटरनली इसने किया क्या एग्जैक्टली इसके दिमाग में चल क्या रहा है कि इसको प्रिंट बोलने के बाद इसने बराबर से डिस्प्ले कर दिया ये 10 नंबर, विच इज इसने ए क्यों डिफाइन नहीं किया, इसने 10 ही क्यों डिफाइन किया ना, क्योंकि ए के अंदर 10 की वैल्यू है, दैट्स व्हाई इट्स प्रिंटिंग 10 नॉट ए. सिंपल है, क्योंकि हमने खुद से ही बोला था पहले कि भाई ए तुम्हारा वैल्यू रहेगा 10. अगर मैं प्रिंट ए करता हूं तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 10 ही आएगा. अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे नीचे आके अब ए अभी तुम्हारा वैल्यू है 20, तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? 20 प्रिंट करेगा, क्योंकि पहले मैंने बोला पहले तेरा वैल्यू 10 है, बाद में मैंने बोला तेरा वैल्यू 20 है, तो ये जो कुछ भी फाइनल वैल्यू रहेगा उसका वो प्रिंट कर देगा. इंटरनली मेमोरी में ये सब चीजें कैसे हैंडल होती है ये देखते हैं. ठीक है, यहाँ तक तो समझ में है आपको? ये एक डिफाइन किया मैंने वेरिएबल a इज इक्वल टू 10 और उसको इसकी वैल्यू असाइन हो गई, बाद में लिखा प्रिंट a. तो इसने क्या प्रिंट किया मुझे? इसने 10 प्रिंट करके दिया. देखते हैं क्या होता है. तो मेमोरी में क्या होता है? प्रोसेसर रहता है. प्रोसेसर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आता है, 010101. ये सब लोगों को पता है, शायद ये सब लोगों को पता है कि कंप्यूटर ओनली नोज 010101 लैंग्वेज. ठीक है. और मेमोरी में क्या रहता है? मेमोरी में रहता है सॉकेट्स. ये हमारा रैम है. ठीक है, ये हमारा रैम है. रैम के अंदर क्या रहता है? सॉकेट्स रहता है. ये ऐसे सॉकेट्स रहते हैं विच कंटेंट्स. इसके अंदर क्या रहता है? इस सॉकेट के अंदर, इस सॉकेट के अंदर रहता है तुम्हारा एड्रेस, इसका वैल्यू और इसका वेरिएबल. ठीक है, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट रहती है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है एड्रेस. एनी प्रोसेसर शुड ओनली नो 010101. ये ध्यान में रखो. रैम के अंदर एक चीज रहती है सॉकेट्स. इस सॉकेट्स के अंदर आपका एड्रेस रहता है, वेरिएबल नेम, वेरिएबल रेफरेंस रहता है और वेरिएबल रहता है. तो एग्जैक्टली होता क्या है? जब मैंने यहाँ पे डिफाइन किया a इज इक्वल टू 10, तो इसने क्या किया? इसने पर्टिकुलर प्रोसेसर को बताया कि a इज इक्वल टू 10 आया है. a इज इक्वल टू 10 आया है मींस इसने क्या किया? इस पर्टिकुलर वेरिएबल को a असाइन कर दिया. मतलब ये वेरिएबल इस a में असाइन हो गया. सर समझ में नहीं आ रहा है. अरे समझ में नहीं आ रहा है तो क्या, अभी तू ध्यान देगा. कौन सा पॉइंट तुझे समझ में नहीं आ रहा बोल दे तू. कि ये समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रोसेसर है, ये समझ में नहीं आ रहा कि a इज इक्वल टू 10 लिखा है, ये समझ में नहीं आ रहा. कौन है? नाम क्या था आपका सर? हु इज टॉकिंग की समझ में नहीं आ रहा? हाँ, तनिष्का रेज हर हैंड. बोलो तनिष्का, क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? समझ में नहीं आया जो बोला था ना, वो बोले ना कि क्या समझ में नहीं आया. एक्सक्यूज मी. ठीक है, चलो छोड़ो. जिसको समझ में नहीं आया वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करे, मैं समझा देता हूँ अच्छे तरीके से. ठीक है, सिंपल ये था कि प्रोसेसर ने क्या किया? रैम के अंदर इस पर्टिकुलर 10 का एड्रेस सेव किया. एड्रेस मींस क्या किया? इस 10 को कहीं पे तो सेव किया 1 2 3 इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, और ये इसका नेम भी यहाँ पे a स्टोर किया. तो इंटरनली क्या हो रहा है? आपके जो कुछ भी वेरिएबल्स है यहाँ पे, आप जो कुछ भी डिफाइन करते हो a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 20,
ये इंटरनली मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, मतलब आपके रैम के अंदर स्टोर होता है, एंड इट विल यूटिलाइज देन एंड देयर। ओके, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वी विल कम टू डायरेक्टली इफ स्टेटमेंट, और ये हम लोग हाउ वी प्ले विद द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये देखते हैं। तो सिंपल चीज है, लेट्स स्टार्ट विद सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी ध्यान दो, अगर समझ में नहीं आया तो समझ में नहीं आया बोलो, और समझ में नहीं आया बोलने के बाद बोल दो कि ये समझ में नहीं आया। ठीक है, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम था a इज इक्वल्स टू 10, मैंने प्रिंट किया है यहाँ पे प्रिंट a, तो इसने क्या कर दिया, इसने मुझे a प्रिंट 10 प्रिंट करके दिया, a प्रिंट करके दिया, whatever the things। अभी सिंपल इफ स्टेटमेंट देखो कि क्या होता है इफ स्टेटमेंट में। यहाँ पे एक छोटा प्रोग्राम है, मैं कॉपी कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक मैंने नंबर डिफाइन किया, num इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अगर आप थोड़े भी एज एन इंजीनियर स्टूडेंट हो, आपने थोड़ा भी बेसिक, सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ दादा, तुला समजत काय नाहीये ते सांग, पॉइंट सांग एक्झॅक्टली की समजत नाहीये ते। तुझं नाव तरी सांग दादा मला, मी तुझं पर्सनल क्लास घेतो। कोण आहेस तू, नाव काय तुझं? समझ में नहीं आने वाला स्टूडेंट, else respective teachers can kick that particular person out of the chat, so that would be better for everyone। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो I will leave the whole meeting, that no worry। अगर सिर्फ 2-4 बंदों को समझ में नहीं आया, I will take extra class for them। ठीक है, ऐसा है क्या कि किसी को समझ में नहीं आया और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, चलो छोड़ो, जिसको समझ में आया दे कैन टेक इट, जिसको नहीं समझ में आया दे कैन लीव इट। ओके, सो सिंपल है। यहाँ पे क्या किया है मैंने, num इज इक्वल्स टू 3 डिफाइन किया है, सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ नहीं है। समझ के लो कि अभी इफ क्या कर रहा है, इफ स्टेटमेंट सिर्फ हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि num इज इक्वल्स टू 3। अगर ये पर्टिकुलर num इज ग्रेटर देन 0 रहेगा, अगर ये पर्टिकुलर num मतलब 3 अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो इट विल प्रिंट इट्स एन पॉजिटिव नंबर। एल्स ये num इज इक्वल्स टू -1 यहाँ पे डिफाइन किया, अगर ये ग्रेटर देन 0 रहेगा तो इट विल बी एन पॉजिटिव नंबर। सिंपल प्रोग्रामिंग। यहाँ पे देखो, अभी एक एक लाइन समझो। यहाँ पे मैंने num डिफाइन किया, उसका वैल्यू 3 असाइन किया, जैसे मैंने a डिफाइन किया था। ठीक है, अगर num इज ग्रेटर देन 0 तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये num अगर ग्रेटर देन 0 है, ये इफ स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इफ स्टेटमेंट देख रहा है कि इस num का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। अगर ये num का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा num इज एन पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो ये 3 है, इसलिए ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है num इज पॉजिटिव नंबर। ये रन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, ये भी लाइन निकाल देते हैं, सिंपल करते हैं इसको। ठीक है, अभी यहाँ पे num डिफाइन किया 3, इफ num इज ग्रेटर देन 0 इट्स एन पॉजिटिव नंबर। अब क्या होगा, सपोज मैंने यहाँ पे -1 डिफाइन किया। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे -1 डिफाइन किया तो ये क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, तो देखो ये num हो गया। ठीक है, यहाँ पे और एक सिचुएशन है जहाँ पे हमने डिफाइन किया, यहाँ पे तो हो गया, इफ num इज इक्वल्स टू 3 ग्रेटर देन num इज ग्रेटर देन 3 तो ये पॉजिटिव नंबर हो गया। यहाँ पे और एक सिचुएशन है, num इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, इफ num इज ग्रेटर देन 0 देन द नंबर इज पॉजिटिव नंबर। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ num इज लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0 देन इट्स ए नेगेटिव नंबर। It's a negative number।
ठीक है, इट्स अ नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे समझ लो कि हम लोग इफ स्टेटमेंट कहाँ पे यूज करते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको पूछ रहे हैं कि नम इज ग्रेटर देन 0 होगा तो प्रिंट इट्स एन पॉजिटिव नंबर, और नीचे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इफ नम इज लेस देन 0 देन प्रिंट इट्स एन नेगेटिव नंबर। ठीक है, अगर मैं ये प्रोग्राम रन कर देता हूँ तो इट will print -1 is negative number and 3 is positive number। ठीक है, अगर आपको इससे भी इजी, अगर ये भी समझ में नहीं आया तो ये समझो कि if num is greater than 0 it will print positive number। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ num is less than 0 तो it should be a negative number, और यहाँ पे मैं पास करता देता हूँ -3। तो ये क्या करेगा, सिंपल है कि इट्स एन नेगेटिव नंबर प्रिंट कर देगा। ठीक है, नम इज लेस देन 0 अगर होगा तो इट विल प्रिंट एन इट्स एन नेगेटिव नंबर। ठीक है, दिस इज ऑलवेज -3 इज एन नेगेटिव नंबर, ये प्रिंट हो गया -3 एज एन नेगेटिव नंबर। ये सिंपल इफ स्टेटमेंट है। किसी को समझ में नहीं आया कि ये सिर्फ चेक कर रहा है कि नम इज लेस देन 0 है और नम इज ग्रेटर देन 0 है। एवरीवन इज क्लियर? आई थिंक सो। जो क्लियर नहीं है वो ठीक है। इफ स्टेटमेंट समझ में आया? यस सर। ओके, सिंपल है ना, इसमें कुछ नहीं है। ये सिर्फ चेक कर रहा है कि इस पर्टिकुलर वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव रहे, अगर मुझे पॉजिटिव चेक करनी है तो नम इज ग्रेटर देन 0 करूंगा मैं, एल्स में नम इज लेस देन करूंगा और वो निगेटिव है वो चेक हो जाएगा। ठीक है, अभी इस इफ स्टेटमेंट के पार्ट देखो, सिंटैक्स देखो कि कैसे हो रहा है। इफ मैंने यहाँ पे मैंने डिफाइन किया ए या नम लिखते हैं, चलो कुछ भी लिखते हैं, वेरिएबल इज काइंड ऑफ यू कैन राइट इट एनीथिंग, नम इज इक्वल्स टू 3 लिखते हैं। ठीक है, तो you can use a is equals to 3 as well, you can use b is equals to 10 as well। तो इसका नाम कुछ भी हो सकता है apart from keyword that I have shown you। ठीक है, तो सिंपल मैंने एक num करके एक 3 का वैल्यू डिफाइन किया, तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है नहीं। इफ num का सिंटैक्स देखो, अभी num मैंने क्या किया, if num is greater than 0 इसको पूछा। तो अगर ये क्या कर रहा है, अगर num इज ग्रेटर देन 0 रहेगा तो तू नीचे जा भाई। तो यहाँ पे इसने स्पेस छोड़ा है, इसको बोलते हैं इंटेंटेशन। ठीक है, इंटेंटेशन मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो बेटा अंदर जा और ये प्रिंट कर कि दिस इज एन पॉजिटिव नंबर। दिस इज एन पॉजिटिव। ठीक है, तो ये प्रिंट कर। तो ये क्या है, इंटेंटेशन। जब आप कोलन देते हो ना, उसके नीचे इंटेंटेशन देते हो। अगर ये ट्रू रहेगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर सपोज ये फॉल्स रहेगा तो क्या करेगा, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा जो कि प्रिंट है। ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ये पूरा का पूरा ऑलवेज एग्जीक्यूटेड रहेगा। तो कैसे रहेगा, अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन इफ num इज इक्वल्स टू 3 एंड num इज ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ऑलवेज प्रिंट एग्जीक्यूटिव ये एग्जीक्यूट रहेगा। तो फ्लो समझ लो पहले। अगर इफ कंडीशन ट्रू होता है, दैट मींस num इज ग्रेटर देन 0, जिसमें ये ट्रू हो रहा है तो ये पॉजिटिव प्रिंट कर रहा है। और अगर ये फॉल्स हो रहा है, इसको मैंने फॉल्स कर दिया, num इज स्मॉल देन 0, इसको मैंने क्या किया, फॉल्स कर दिया, तो क्या करेगा, ऑलवेज ex की एक ही लाइन सिर्फ प्रिंट होगा, ये वाला। ये प्रिंट पॉजिटिव प्रिंट नहीं होगा। क्यों प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो मैंने चेक कर रहा हूँ, एक डोर स्टेपर रहता है ना, आपका आईडी कार्ड चेक करता है ना आपके कॉलेज में, सिक्योरिटी गार्ड, तो वो क्या चेक करता है, अगर आपके पास आईडी होगा तो वो आपको अंदर छोड़ता है, अगर आपके पास आईडी नहीं होगा तो आपको अंदर नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पे वही चेक कर रहा है कि अगर नंबर इज स्मॉलर देन 0 है तो वो प्रिंट पॉजिटिव करेगा, अगर ये नहीं है, जो कुछ भी मैसेज है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, अगर वो नहीं है तो वो क्या करेगा,
ये एग्जीक्यूट करेगा विच इज अ स्टैंडर्ड स्टेटमेंट। सिर्फ ये चेक कर रहा है कि आपके पास आईडी है कि नहीं। अगर आपके पास आईडी है तो आपके पास आईडी है, आपके पास आईडी नहीं है तो आपके पास नहीं है। जो आपका रेगुलर फ्लो रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। दिस इज अ सिंपल इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अंडरस्टूड इफ स्टेटमेंट? आई थिंक सो, अंडरस्टूड। देन इफ एल्स स्टेटमेंट। अभी इफ एल्स स्टेटमेंट ना सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है आपका आईडी कार्ड वाला। ठीक है, सपोज मेरे पास ए है जिसके पास आईडी कार्ड है विच इज डिनोट्स बाय 1, और बी है, बी के पास आईडी कार्ड नहीं है विच इज डिनोट्स बाय 0। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ ए के पास आईडी कार्ड है, बी के पास आईडी कार्ड नहीं है। फिलहाल तो हम एक ही स्टूडेंट कंसीडर करेंगे, ए इज इक्वल टू 1 जिसके पास आईडी कार्ड है। ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन, ओके, ए इज इक्वल टू 1, दैट मींस आईडी कार्ड है इसके पास। ठीक है, आईडी कार्ड अवेलेबल। ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होगा तो ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, ये समझ लो इसका आईडी कार्ड अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा पर्टिकुलर, ये आपको एंट्री देगा विच इज प्रिंट एंट्री। अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट में क्या रहता है, एल्स इट विल प्रिंट रिजेक्टेड। अभी यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट देखो, 1 का मतलब क्या है, आपके पास आईडी कार्ड है कॉलेज का, तो क्या करेगा, अगर a इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स आपके पास आईडी कार्ड है, तो ये प्रिंट करेगा एंट्री। और अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो ये क्या करेगा, अदरवाइज इन एनी सिचुएशन आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इट विल प्रिंट रिजेक्टेड। ठीक है, तो a का वैल्यू 1 था, इसने चेक किया a इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू वी आर चेकिंग a कंटेन्स वैल्यू टू 1 और नॉट, तो इसने एंट्री किया, इसने रिजेक्ट किया। दिस इज द सिंपल पाइथन। ठीक है, चलेगा। ये हो गया इफ स्टेटमेंट, ये हो गया एल्स स्टेटमेंट। अभी देखते हैं फाइल हैंडलिंग डायरेक्टली। ठीक है, फॉर स्टेटमेंट वगैरह यू कैन आस्क टू द चैट जीपीटी एंड चैट जीपीटी विल रिस्पॉन्स यू व्हाट एग्जैक्टली इज फॉर लूप एंड ऑल दोस थिंग्स वर्क। ठीक है, फाइल हैंडलिंग देखते हैं। फाइल हैंडलिंग के सिंपल प्रोग्राम देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द फाइल हैंडलिंग एंड हाउ यू यूज दैट पर्टिकुलर फाइल हैंडलिंग। ओके, सिंपल प्रोग्राम है फाइल हैंडलिंग का। ओपन अ फाइल एंड प्रिंट इट्स एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज। ठीक है, ये मेरा पर्टिकुलर कोड है। ये क्या करेगा, फाइल ओपन sample.txt इन रीड मोड। मेरे पास sample.txt फाइल है क्या, नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फाइल बनाऊंगा sample.txt। ठीक है, ये sample.txt फाइल बना है, इसमें मैंने लिखा सिर्फ हाई लिखा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्या करेगा, ये फाइल इज इक्वल टू ओपन sample.txt r। ये r क्या है, ये रीड मोड है, दैट मींस ये पर्टिकुलर फाइल रीड कर रहा है। नेम ऑफ फाइल कैसे आएगा, फाइल डॉट नेम। ये पर्टिकुलर फाइल के अंदर नेम नाम का कंटेंट रहेगा और वो फाइल नेम रहेगा। फिर मोड रहेगा कि रीड मोड है, राइट मोड है, जो कुछ भी। मैं ये प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ, सिंपल चीज है। ठीक है, कि इसने क्या किया, sample.txt फाइल ओपन किया और इसको रीड मोड में ओपन किया और इसको यहाँ पे क्लोज किया। सपोज मेरे पास ये फाइल नहीं है, ये फाइल मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर ये प्रोग्राम में रन कर देता हूँ तो ये एरर थ्रो करेगा। क्या करके एरर थ्रो करेगा, आपके पास फाइल ही नहीं है तो आप क्यों ओपन कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ओपन लिखा है ना मैंने, तो आपके पास फाइल नहीं है तो क्यों ओपन कर रहे हो, इट्स सिंपल। ठीक है, ये हो गया फाइल ओपन करने का लॉजिक। दूसरा हो गया, ये हो गया फाइल ओपन sample.txt r फाइल क्लोज। और जो कुछ भी हमारे पास फाइल के अंदर है वो हम रीड कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैंने सेम फाइल बनाया txt। ठीक है, इसमें लिखा हाय। ठीक है, ये प्रिंट कैसे होगा मेरे प्रोग्राम थ्रू, यहाँ पे फाइल ओपन सैंपल टेक्स्ट और ये रीड मोड में फाइल डॉट क्लोज। इसने ये फाइल ओपन करके क्लोज किया। ठीक है, इसको मैं निकाल देता हूँ फॉर टेम्पररी कि क्लोज नहीं करता हूँ। ठीक है, अभी ये फाइल ओपन हो गया और इसने फाइल डॉट रीड किया, अदरवाइज एरर थ्रो किया। सिंपल है।
इफ एल्स ही है इसमें, क्या है, कुछ नहीं, ये ट्राई मींस इफ ही है, यू कैन कंसीडर दैट। इसने क्या किया, फाइल ओपन किया, फाइल रीड किया और इसने हाई प्रिंट कर लिया, ठीक है। अगर मैं फाइल ये क्लोज कर देता हूँ, फाइल ओपन किया, फाइल क्लोज कर दिया, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फाइल ओपन हुआ है और फाइल क्लोज हुआ है, तो इसने एरर क्या थ्रो किया, आई ऑपरेशन इज क्लोज द फाइल। तो पहले आपको फाइल ओपन करना पड़ेगा, फिर आपके ऑपरेशंस करने पड़ेंगे एंड देन यू हैव टू क्लोज योर फाइल। दिस इज हाउ इट वर्क्स एग्जैक्टली, ठीक है। ये हो गया फाइल ओपन, फाइल क्लोज, ठीक है। अभी आप फाइल राइट कैसे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोड स्निपेट, ठीक है, यहाँ पे ये देखो लाइन हेलो वर्ड जो कुछ भी है ये मैंने लिखा है, इट विल प्रिंट इनटू द demo.txt फाइल। तो मैंने क्या किया, विथ ओपन किया। अभी विथ का मीनिंग क्या है, देखो हर टाइम मुझे फाइल ओपन और क्लोज करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे ऑपरेशंस किया और ये क्लोज किया। फाइल में ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, फाइल ओपन करो, उसमें राइट करो, रीड करो और उसको क्लोज करो, ये तीन ऑपरेशंस है। ये तीनों ऑपरेशंस है ना इजीली हैंडल्ड विद दिस विथ ऑपरेटर। विथ क्या करता है, ये तीनों ऑपरेशन हैंडल करता है, फाइल ओपन भी करता है, उसमें ऑपरेशन जब तक होते हैं तब तक ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट रहेगा और वो क्लोज ऑटोमेटिकली कर देगा। दिस इज द सिंटैक्स फॉर फाइल ओपन, ठीक है। विथ ओपन demo.txt राइट मोड में एज एफ ओपन किया, f.write लाइन और ये लाइंस कहाँ से आया है, लाइंस मैंने डिफाइन किया है। और राइट लाइन ये फंक्शन रहेगा जो कि इस पर्टिकुलर चीज के अंदर, वो पर्टिकुलर फाइल के अंदर वो ऐड कर देगा, ठीक है। ये मैंने सेव किया और ये रन किया, तो इसने क्या किया, एक demo.txt फाइल बनाया और इसके अंदर ये पर्टिकुलर चीज राइट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मेन फाइल के अंदर इसने ये पर्टिकुलर चीजें राइट किया। ये हो गया मेरा राइट फंक्शन, ठीक है। ये हो गया राइट। अपेंड डेटा, अभी मुझे एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर कुछ तो डेटा अपेंड करना है, मतलब ऐड करना है, तो मैं कैसे करूंगा, दिस इज कोड स्निपेट फॉर दिस, अपेंड टू दिस लाइन। एंड मैंने अगर ये रन कर देता हूं तो ये क्या करेगा, सेम demo.txt के अंदर ये अपेंड दिस लाइन कर देगा, ठीक है। तो ये पहले ये चीज थी, पहले इसने ये अपेंड कर दिया यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, फाइल ओपन demo.txt ए और राइट अपेंड, ऐसे करके सारे के सारे ऑपरेशंस आई हैव डिफाइंड हियर। इसका पर्टिकुलर नोट्स का लिंक है ना, मैं भेज देता हूँ चैट बॉक्स पे, दैट वुड बी बेटर फॉर यू, ठीक है। तो सिंपल चीज है यहाँ पे। इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको, कि फाइल हैंडलिंग में, आई नो कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि टाइम लिमिट है बहुत, बट हाँ ये समझ लो इसमें कि सिंपल चीजें हैं। हाँ हाँ ओके ओके म्यूट हो, हाँ ठीक है म्यूट हो सर। तुम्हाला दोघांना जे पटते ते करा. कोण नाही म्हटलं मला मी Okay. Ma'am, I'm done. माझा प्राइम टाइम गेलेला आहे ना, मला बघू दे. माझा प्राइमच नाहीये. करू स्टार्ट. करणार आहे 1 2 3 गो. Hello. Manoj sir is there. Manoj sir. माझा लेले करू. गणलो इकडेच पहिल्या लेअरलाच. काय वाटतं माझा लवकर. शेषाई सर. हाँ. यस सर. यस मैंने मैडम फाइल हैंडलिंग जितना अटेंटिव पीपल है उनको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है फाइल हैंडलिंग का. If anyone wants to connect with me and really want to learn something ना, they can connect me personally. I don't have any problem. मैंने इस पर्टिकुलर नोट्स का है ना लिंक सेंड कर देता हूँ मैं मैम के साथ, और मुझे अभी चैट बॉक्स का भी कोई एक्सेस नहीं है, बट मैं रिस्पेक्टिव पर्सन को ये नोट्स का लिंक शेयर कर देता हूँ. इसके नीचे एक फीडबैक फॉर्म है, यू कैन गो एंड गिव अस फीडबैक, एनी फीडबैक दैट यू लाइक इट और नॉट लाइक इट. और आपके मतलब एज अ स्टूडेंट इफ यू वांट टू सी द हाउ एग्जैक्टली पाइथन इज वर्किंग एंड हाउ वास्ट इट इज यूजिंग इन द इंडस्ट्री, तो मेरे पास एक आपको लाइव प्रोजेक्ट है जो कि आप देख सकते हो. इफ यू गो इनटू द नोट्स के अंदर ही है ना,
नोट्स के अंदर रिपोजिटरी है, ये मेरा खुद का गिटहब रिपोजिटरी है. इफ यू गो इनटू द LIB जॉब्स ना, LIB जॉब्स, ये वाला पर्टिकुलर, ये रिसोर्सेज मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी. ये पाइथन का रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन है. ये पर्टिकुलर ऑटोमेशन सिस्टम है जो कि क्या करता है, ओवरऑल इंटरनेट से जॉब पोर्टल का डेटा उठाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और डंप कर देता है टेलीग्राम चैनल पे टू द स्टूडेंट हु आर लाइक टू अप्लाई टू दिस पर्टिकुलर जॉब. इसके लिए हमारा खुद का टेलीग्राम का चैनल भी है जॉब्स का, जॉब पोर्टल का, डेली linksinbio.in जॉब पोर्टल, जिसमें आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, आपको इंटर्नशिप मिलेंगे, वॉकिंग ड्राइव्स मिलेंगे, सारी की सारी चीजें. ये इस पे मैनुअल वर्क कोई नहीं होता, ये सब इंटरनेट पे जाता है, उठाता है. यहाँ पे एक बॉट क्रिएट किया है, ये बॉट भी पाइथन पे बनाया है. ये सब चीजें उठा के आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा. यू हैव टू जस्ट ओपन द लिंक एंड जस्ट अप्लाई टू पर्टिकुलर थिंग. अभी ये वॉकिंग है, इसके लिए इसके यहाँ पे अप्लाई बटन नहीं रहेगा, but you will get daily updates on that particular linksinbio.in job internship working channel. और ये सब चीज बनाई है पाइथन के बेस पे. इसलिए मैं बोल रहा था स्टूडेंट लोगों की सीरियस हो जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, but no one is taking serious, so I'm just leaving the things. But if anyone really want to learn the Python, this is the good project for you. ये पूरा scratch से बना है, and you can go take a look how it works, how bots are work on Telegram, how Python is work, how web scraping is work. You can take this. I will send the respective links to the respective teachers. So I think I'm done. Okay, thank you.